Just started. Training started. Good afternoon, everyone. Welcome to 25 hour in service in-house training program under CBSE. Topic: Bloom's taxonomy. Purpose of this session: myself Vijay Bharti, KL Mandal sir, Anisha ma'am, and Putul ma'am. 1 to 17 slide me and Anisha ma'am describe, and after remaining slides Putul ma'am and KL Mandal sir describe. Now sir, start. The mind is not a visa to be filled, but a fire to be ignite. Plutarch. तो प्लूटार्क का एक कथन था कि the mind is not a vessel to be filled but a fire to be ignited. That means कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे के माइंड को सिर्फ फैक्ट से नॉलेज से फिल कर दें, बल्कि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करें, हम एज अ फैसिलिटेटर वर्क करें. ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स was an American educational psychologist who made contribution to the classification of educational objectives and to the theory of mastering learning. In 1956, Benjamin Bloom collaborated to publish a framework of categorizing educational goals, popularly known as Bloom's taxonomy. What is Bloom's taxonomy? According to definitions, the word taxonomy has been derived from two Greek words, taxis and nomia, meaning classification of, arranging of things in order. Put simply, taxonomy is a science of organizing things and classifying them according to various criteria. तो ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस एंड नोमिया, जिसका मतलब होता है कि चीजों को क्लासिफाई एक अरेंज वे में, एक ऑर्डर में उसको क्लासिफाई करना या फिर अरेंज करना. Bloom's taxonomy is a set of three hierarchical models which are used to classify educational learning objective into level of complexity and specificity. The three lists cover the learning objective in cognitive, affective and sensory domain. जो लर्निंग के जो थ्री डोमेन्स हैं उनको एक हायरार्किकल वे में इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में रखा गया है, जो कि है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन. Revised by Lauren Anderson in 2001, published by the title A Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment. 1956 में ब्लूम्स ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और उसी का रिवाइज फॉर्म आया था 2001 में, और जिसका नाम था टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट. Bloom taxonomy is a classification of level of learning. It can be used by teachers and educators to classify and organize learning objectives. Learning objectives are the statement that describe what a student is expected to learn from the lesson. Whenever a teacher teach something, there is always an objective behind it. That is, today by
certain thing. तो जब भी हम क्लास में जाते हैं, क्लास में पढ़ाने के लिए, उससे पहले हम कुछ ना कुछ सोच कर जाते हैं कि अगर मैं ये पार्टिकुलर टॉपिक क्लास में पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बच्चों को किस लिए पढ़ा रही हूँ। ये हमेशा एक माइंड में टीचर लेकर चलते हैं। और जब हम लेसन प्लान भी बनाते हैं तो हम उसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको जरूर लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम क्लास में मान लीजिए एग्जेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होते हैं, इस टॉपिक को लेकर कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में तो बच्चे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको कि वो सीख पाएंगे। तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि बच्चा जो है वो एडजेक्टिव का डेफिनेशन दे पाएगा आज की क्लास में पढ़ने के बाद। दूसरा है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि उसके कुछ एग्जांपल्स भी वो दे पाएंगे। एंड थर्ड है कि उस एडजेक्टिव को लेकर वो कुछ सेंटेंस भी बना पाएंगे। So now the teaching is done without learning objective. There is always some objective behind teaching some things and they are called learning objectives. According to Bloom's, learning takes place in 3 domains level. एक वीडियो के माध्यम से हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लर्निंग स्टेजेस को देखेंगे। It's a toolbox that teacher Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to classify and organize learning objectives. Its most popular version is based on the cognitive domain and assumes that learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essentially meaningless facts, we move to the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, then it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we can boil a lemon into hot water and add some honey. Then serve this hot lemon to our sick sister, who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside, while the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides. It ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste. If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high and where others score higher. Now, after we
understand lemons, also in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan: natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. Millions of students from all around the globe have watched. ब्लूम लर्निंग का कितने स्टेप है वो याद हो जाए तो बहुत चीज हो जाएगी। अभी आपने देखा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पर एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से बताया गया कि डिफरेंट स्टेज पर कैसे बच्चों का रिटर्न बैक लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो इस टॉपिक्स को लिखा गया, आगे भी इसको और भी डिराइव करेंगे हम लोग। According to Bloom, learning takes place in 3 domain levels. तीन लेवल में इसको जो डिवाइड किया था, पहला था कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू आवर आर्ट। जैसे नेक्स्ट आने वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था रिलेटेड टू आवर हेड। सेकेंड जो है अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू आवर हेड। थर्ड जो है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, रिलेटेड टू आवर हैंड। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ये जो 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया गया हेड, हार्ट और हैंड, इन तीनों के माध्यम से कॉग्निटिव डोमेन को डिफाइन किया गया है। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन और टू थिंकिंग। ये जो डोमेन है हमारा मेंटल स्किल से रिलेटेड है। दूसरा में अफेक्टिव डोमेन जो हमारे हार्ट से रिलेटेड, जो हम लोग पहले भी इमेज को देख चुके हैं। थर्ड है जो साइकोमोटर डोमेन आल्सो नोन एज कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू मोटर स्किल्स, जो कि हम बेसिक स्किल्स जो करते हैं मूवमेंट्स को लेकर, वो हमारे इस डोमेन के अंतर्गत आता है। ब्लूम gave hierarchical models for all these 3 domains: cognitive, affective और psychomotor हायरार्की। इसके बाद मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, आप इसको आगे डिफाइन करें। So basically, थोड़ा summarize करूँगी। Bloom's taxonomy is related to very much the objectives, learning objectives. वो असल में explain किया था जो काफी हद तक हमारे teaching लाइन में important है, और उसी का संबंध है Bloom's taxonomy से। तो ये जो Bloom's taxonomy है, it is basically having these 3 parts, जिसका एक ही पार्ट हम टच करेंगे because that is very vast, and that is the first part, cognitive. And cognitive domain जो है वो basically related करता है हमारे mental aspect से relate करता है, ठीक है ना, first one. And the second part is related to the heart, or let's say the feeling. कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं और उसमें हम एक फील लाते हैं, लाइक हमें इंटरेस्ट होने लगता है, that is related to our feeling. एक कोई भी स्टूडेंट अगर वो पढ़ता है, चीज़ों को समझता है और उसे पसंद करने लगता है, तो वो इस पार्ट में आ जाता है, अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है, that is related to the heart, and that is why इंटरेस्ट आना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है।
दिमाग से दूसरे वाले में थोड़ा इंटरेस्ट होकर के काम Interest करें, होना और चाहिए। तीसरे वाले को अपना क्रिएटिविटी ऐड से रखें। इसीलिए ऑब्जेक्टिव से कि ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है टीचर को कि ये तीन चीजें साथ में आनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर। तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा भागेगा। तो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम फीलिंग भी कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन, जो कि हम एक्शन की बात करेंगे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे डांस हो गया, हाँ बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आने लगे और उसमें काम करेगा, इन्वॉल्व होगा, जितना भी क्रिएशन करेगा वो से एवरीथिंग जितनी भी चीजें वो करेगा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट उसमें ही करेगा, दैट विल बी इन दिस साइकोमोटर डोमेन। जैसे हम लोगों का पहला एजुकेशन सिस्टम था क्लियर आर नेक्स्ट हो गया है एचएचएस, यानी कि हेड हार्ट एंड हैंड। अब हमारा हो गया है पूरा एजुकेशन सिस्टम को 3 डोमेन में डिवाइड किया। ब्लूम बेंजामिन ब्लूम ने और उनके सोजरी, यानी कि लॉरिन एंडरसन एंड क्रेप्को, ये तीनों मिलकर बाद में पहले सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम उन्होंने ये जो कॉग्निटिव डोमेन का डेफिनेशन किया था वो 6 पार्ट में यानी नाउन फॉर्म में दिया था, और बाद में जब वो अपडेट हुआ, जैसे हम लोग अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करते हैं, सेम उसी तरह से बेंजामिन ब्लूम भी उन्होंने अपने साथियों के साथ उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद वो भाग में लाया सब कुछ, अरे जैसे हम उसको करेंगे ये सब चीज को थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा पहले वाले उससे पहले सब मैंने उससे पहले उससे आगे वाला और उससे आगे वाला थोड़ा सा। हाँ, ये जो डोमेन है ये 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। एक कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन फुल्ली डिपेंड हमारा हेड यानी थिंकिंग पर, और अफेक्टिव डोमेन ये कंप्लीटली हमारे फीलिंग पर, ये फीलिंग है यानी जिससे हार्ट से रिलेटेड फीलिंग है। साइकोमोटर डोमेन ये साइकोमोटर ही है जहाँ गति, यानी हम उसको एक्शन में बदलेंगे। पहले तो हम उसको थिंकिंग करेंगे, उसका फीलिंग नहीं करेंगे, और बाद में उसको एक्शन में परिवर्तित करेंगे। ये है साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, मैडम जैसे बताएंगे वो कॉग्निटिव डोमेन और उसका पार्ट के बारे में मैडम। Okay, basically this was the 3 level, all the 3 अगर हम बात करें चाहे वो फर्स्ट डोमेन हो, सेकंड डोमेन और थर्ड डोमेन हो, those are also divided into sub parts या sub levels। तो हम आज फर्स्ट को ही ले रहे हैं, इसीलिए हम बाकी 2 में नहीं जाएंगे। फर्स्ट लेवल फर्स्ट जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 लेवल्स है, जो कि अकॉर्डिंग टू 1956 में इसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये 6 लेवल में डिवाइड किया गया था। इट वाज इन 1956, बट जब इसमें रिवाइज हुआ था इन 2001, सर्टेन थिंग्स वेर चेंज, जैसे कि सर ने बोला कि नाउन से वो बिल्कुल वर्ब में चला गया था और उसमें कुछ चेंजेस हुआ था नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि इन 1956 इट वाज नॉलेज, अगर हम हायरार्की देखें नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसमें नॉलेज वाज कन्वर्टेड इनटू रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, applying and analysis was analyzing, and ये एक मेजर चेंज हुआ था जहाँ पे सिंथेसिस जो था वो सेकेंड लेवल पे था 1956 में, and that was being put up in the most of position that was being named as creative, and जो evaluation part था उसको सेकेंड में। इवैल्यूएशन हमको वो क्रिएशन को नहीं देखना है, ये जो लास्ट अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन जैसे टीचर के रोल में हम लोग तो इवैल्यूएशन तक ही जाएंगे,
उसके बाद वो अपना क्या एप्लीकेशन बना रहा है, वो चीज है जो पहले हम लोग वो देख रहे थे कि इसमें सिंथेसिस पहले था, है ना? हाँ। अब जो है वो क्रिएट वाला वो लास्ट में आया है, आपका इवोल्यूशन के बाद वो अपना क्या क्रिएशन वो होता है, अपना क्या करेगा। तो सबसे ऊपर में है कि क्रिएशन मतलब सारी चीजों को करने के बाद में वो क्या एक हमें सारी चीजें एजुकेशन लेने के बाद में वो हमें क्या एक आउटपुट देता है, तो विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग। और वो यही एक आप कह सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अल्टीमेटली बच्चा कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, तो फर्दर इट इज अगेन अगर हम रिमेम्बरिंग की बात करें तो बेसिकली इट इज रिकॉर्डिंग। व्हाट इज रिमेम्बरिंग? इट इज रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। Understanding is the main idea of material now. Understand the main idea of material heard जो आप सुनते हैं, और वो हमें समझ आना चाहिए। View, read, interpret और summarize the idea in own words। तो जब understanding आ जाता है तो ये चीजें आ जाती हैं, हमें समझ आने लगता है, हम उसे summarize कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल्स बहुत है बट मैं अभी देना चाहूंगी। जैसे कि कोई भी चीज अगर होता है रिमेम्बरिंग की, अगर हम बात करें तो रट के वाला हम कह सकते हैं, बट हाँ बहुत लोगों में रटने वाली चीजें होती है बट वो समझ नहीं पाते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अगर एक रिटन पीस है तो अगर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गुड तो वो अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, उसको समझ आ जाएगा। दैट इज द पार्ट व्हिच इज बीइंग सेड। एंड देन अप्लाइंग, समझ आ जाए तो ऑटोमेटिक हम उसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। एनालाइजिंग इज एग्जामिन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज टू ब्रेक देम डाउन इनटू बेसिक पार्ट। नेक्स्ट, इसको और अच्छे से एक एग्जांपल इसे तो बहुत बढ़िया से हम डिस्कस कीजिए तो बहुत चीज है। हाँ एक एक करके बहुत है, थोड़ा सा इससे पहले जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जब क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच में कोई टीम हार जाती है तो सबसे पहले तो उसको है कि वो टीम हार गई, वो तो वो इसको उसके बाद वो कॉन्फिडेंस में है कि सबसे पहले वो हार गई, एक तो ये दिमाग में आ गया कि वो हार गई। अब उसके बाद वो हार देखिए धीरे 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 उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे धीरे धीरे कि हारने का कारण क्या क्या, एक एक चीज उसको उसके बाद एनालाइज करते जाएंगे। इसके कारण हो सकता है कि वो हार गई, हो सकता है इसके कारण हो गया। उसके बाद एक इकट्ठा करेंगे, उस सिंथेसिस करेंगे कि हो सकता है ये बाद में एग्री करेंगे नहीं, हाँ इसी के कारण मेन जो कारण था इसी कारण हमारा टीम। तो ये लास्ट में इवोल्यूशन पार्ट हुआ वो 1956 में। यही है कि पहले तो नॉलेज ज्ञान है कि भाई ये खेलना होता है, सिंपली बात है कि क्रिकेट खेल, उसके बाद उसको समझना होता है और जब उसको अप्लाई करने खेल रहे हैं हो सकता है कि वो हार गए, उसको बाद उसकी एनालाइज करेंगे कि हारने से क्यों हार गए, क्या रीजन है, उसमें अलग अलग पार्ट में उसको एनालाइज करते रहेंगे। उसके बाद उसको इकट्ठा करेंगे, हाँ सकते ये भी होगा, ये सारा हो सकता है, और उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे हार गई तो हार गई। अब उसको हम उसको रिकम करेंगे लास्ट में। ओके, एक एक करके जैसे सर ने पूछा कि समझाना है तो दिस इज नॉलेज और रिमेम्बरिंग, हमने दोनों टर्म को लिया है 56 वाले की और 2001 वाले की। सो बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू रिकॉल द डेटा। इसको आसान में समझाने सर ने भी काफी अच्छा एग्जांपल दिया दैट द लर्नर इज एबल टू रिकॉल रीड स्टेट एंड रिमेंबर लर्नड इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, recognizing, memorizing, describing, identifying, explaining, reciting, illustrating. So these are the things the student will be able to do. Next. बाद में Sir, memorizing is right now. खास
रटने का नहीं है, जैसे आपका हेडिंग, जैसे कोई भी टॉपिक का हेडिंग रहता है जिसमें वो सब हेडिंग को समझ लिया, वो आपका वो वेब लिख देना है चीज़ें, उसके बाद उससे डिस्क्राइब करते हैं, जब इलैबोरेट करते हैं तो वो आपका जो है वो सेकंड पार्ट में हाँ सेकंड पार्ट में है। वो आता फिर आप वो समझ गए तब फिर एप्लीकेशन पार्ट में है, इतनी सारी चीजें तब एक पार्ट म्यूजिकल्स वगैरह वो सब चीज़ बना के हाँ, तो वो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में चल रहे थे। नेक्स्ट दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल, जैसे कि सर का डिमांड था हम लोग सर का कि कुछ सब्जेक्ट से लिया जाए, तो बेसिकली मेकिंग अ स्टोरी, दीज आर सम एग्जांपल्स, मेक अ स्टोरी रैप शोइंग द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, or we are making a timeline of your typical day, make a concept map of the topic, write a list of keywords, know about it. तो ये नॉर्मल चीजें जो हम करते हैं और हमें याद रहता है। इस एक मैडम इसलिए रिमेम्बरिंग का बैलेंस जैसे कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको स्टोरी में कुछ जानना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट मैप है, ये कॉन्सेप्ट मैप में क्या क्या सकती है। हमने मैप बना लिया है और उस मैप में हमें की वर्ड भी रहेगा कि की वर्ड है, लिस्ट ऑफ की वर्ड्स यू नो अबाउट, और उस कीवर्ड उसमें पूरा है कि ये कीवर्ड है और इसमें कैरेक्टर कौन कौन है, तो व्हाट कैरेक्टर्स आर इन द स्टोरी, ये सारा हम लोग बनाएंगे, एक मेमोराइज करेंगे, रिमेंबर करेंगे, वो रिमेंबरिंग पार्ट है सारा। Comprehension or understanding. Again, the learner grasps the meaning of the information by interpreting the and translate what has been learned. तो बेसिकली समराइजिंग ही है, आप कुछ भी विद जो भी हो, अगर वो आपकी समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वो उसमें बचा हुआ है। तो बच्चे में इतना भी ध्यान देना है कि वो जो पीस है वो रटता तो है, इसको वो समझ जाए, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। जब भी कोई बच्चा समझ जाएगा, उसमें जब अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, तभी वो इंटरप्रेट कर पाएंगे, तभी वो समराइज भी कर पाएंगे, तभी वो क्लासिफाई भी कर पाएंगे या कंपेयर भी कर पाएंगे, एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे जब वो समझ में आएगा। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर वो कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, कैसे कंपेयर करेंगे। तो वो जब ये सारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया है कि वो इंटरप्रेट करे या समराइज करे किसी घटना को या कोई भी लेसन को, या उसको कॉन्ट्रास्ट से क्लासिफाई करेगा, तभी करेगा जब उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एग्जांपल्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, जैसे बच्चों को कुछ चीजें हम देते हैं जहाँ पे उनको एक्सप्रेस करते हैं in their own words. Cut out or draw picture to illustrate particular event in the story. Report to the class. Illustrate what you think the main idea may have been. Make a cartoon strip showing the sequence of event in the story. Write and perform a play based on. ये सारी चीजें whatever is there, ये सारे बच्चा खुद अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कर रहा है, वो कहीं से कॉपी या रट के नहीं कर रहा है, सारी चीजें वो समझ के कर रहा है। जो अप्लाई करने से किया है, अप्लाई राइट इन योर ओन वर्ड, वो अप्लाई कर रहा है, समझ में आ गया है, पहले तो नॉलेज हुआ, रिमेंबर किया, देन अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अब वो अप्लाई करने लगा है कि राइट इन योर ओन वर्ड, या रिपोर्ट टू द क्लास, या व्हाट यू थिंक द मेन आइडिया इन योर टीम, मेक ए कार्टून स्ट्रिप और शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब उसको समझ में आ जाएगा तो वो अप्लाई कर पाएगा, बिना समझे तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। कौन सा इवेंट कौन पहले हुआ या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सीक्वेंस आ गया है, वो अप्लाई करने लगा। पहले समझ में आ गया, याद किया, चलो इधर से आगे इसके बाद उसको समझ में आ गया कि नहीं ये पहले होना चाहिए, उसके बाद वो अप्लाई कर रहा है। ये लास्ट ये थर्ड स्टेज हो गया। Third stage, application or applying. Application refers to the ability to use learn materials in a new and complex situation. The learner makes use of information in a context different from the one in which it was learned. Very important line जो second वाले में है, जिसमें mention किया हुआ है कि वो उसे use कर सकते हैं, जो भी उसने सीखा है वो practically उसे use करता है, उसे implement करता है।
कुछ पजल्स होते हैं जिसको सॉल्व करता है, यानी वो प्रैक्टिकली उसे कर रहा है। चेंज, एग्जीक्यूटिंग, यूज, डिस्कवर। मेन पार्ट तो यही एप्लीकेशन ऐसे बच्चे को हम लोग 2+2 = 4 कर लेते हैं। जैसे उसी के जो हम लोग व्हाट फॉर्म में देते हैं, देयर आर 2 apples and more 2 apples are added, how many apples are there in all, तो वो नहीं करता, क्योंकि उसको वो अगर वो कर पाया मतलब वो अप्लाई कर पाया है। 2+2 या एडिशन उसको गलत मान ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन जब वही चीज को व्हाट फॉर्म में दे देते हैं तो वो घबरा जाता है। जब वो व्हाट फॉर्म में कर लिया है तो उसमें वो अप्लाई कर पाया है। जैसे मैं साइंस के लिए बताऊं, फिजिक्स में जैसे व्हाट व्हेन यू हैव लर्नड इन योर क्लास, you have understand it, how will you apply it for the different situations? That means if you are able to do the mathematical or numerical part here, then you have applied it. एप्लीकेशन वो वहाँ पर है कि आपने अपना सॉल्व जो है हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में, if you are able to solve all these things in the different situation, then you have applied it properly. ये वर्ड वही बात है, ये एप्लीकेशन वाला बात है, अप्लाई पार्ट। Examples. Construct a model to demonstrate how it looks or works. Practice a play and perform it for the class. Make a drama to illustrate an event. Write a diary entry. Make a scrapbook about the area of study. Prepare invitations for characters. बहुत बढ़ जाएगा। खाली बेसिक को खाली वो जानते हैं, इसके बाद कुछ होता है। Next is analyze or analyzing. So the learner breaks learned information into its parts to best understand that information and are able to distinguish between fact and opinion. So basically इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल before going to those points, एक काफी बार एक फेक न्यूज आता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। व्हाट्सएप में भी काफी चीजें फेक आती हैं, लेटर्स आते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं? हमारे अंदर ये जो कैपेसिटी है एनालाइजिंग की, कंपेयर करने की कि सही है गलत है, तो ये चीजें डेवलप करके हमारा ये वाला एस्पेक्ट, ये लेवल आप कह सकते हो जहाँ कंपेयरिंग, कॉन्ट्रास्ट, ऑर्गेनाइजिंग, कोरिलेटिंग, इलस्ट्रेटिंग, आउटलाइनिंग, ये सारी चीजें आती हैं। कैटेगराइजिंग जैसे है कि द लर्नर ब्रेक्स लर्न इन्फॉर्मेशन जो भी उसने सीखा और उसको ब्रेक कर सकता है इनटू पार्ट्स टू बेस्ट अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज वो सीखा और उसको वो ब्रेक करके अगर सारा इन्फॉर्मेशन को पता करता है, देन एंड आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ये है ये एनालाइज पार्ट है। पहले तो हो गया है कि वो रिमेंबर करेगा, नॉलेज गेन करेगा, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, और उसके बाद वो एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं कि वही है कि लर्नर ब्रेक्स अलग अलग पार्ट में लर्न इंफॉर्मेशन इनटू इट्स पार्ट्स टू बेस्ट अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन। ये है एनालाइजिंग पार्ट। नेक्स्ट कोरिलेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल एमडीटी है, वही सब तो हम लोग देख रहे हैं। So these are the examples. We are moving on to the next. Evaluation or evaluating. So the learner makes judgment or decision based on in-depth reflection, criticism and assessment. ये है कि बच्चा can or child justify a decision across occasion. Learner makes judgment. जब वो एनालाइज कर लिया है, अभी ये जो है 2001 हुआ, उसके पहले ये चेंज हो गया था। अभी ये पार्ट पहले आ गया है, लास्ट में वो क्रिएशन में क्रिएटिंग में आ जाएगा। ये इवैल्यूएशन वाला इवैल्यूएटिव पार्ट है। लर्नर मेक्स जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन इन डेप्थ रिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म एंड असेसमेंट। तो कुछ अभी ये इवैल्यूएशन पार्ट डाला गया है, तो वो चेक कर रहा है, वो हाइपोथेसिस कर रहे हैं, क्रिटिकिंग करिए, एक्सपेरिमेंटिंग करिए, जाजिंग करिए, टेस्टिंग करिए, वो सारा इवैल्यूएट पार्ट हो गया है। वो डिटेक्ट कर रहा है, मॉनिटरिंग करिए, कर रहा है, तो ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट हो गया है। अब लास्ट ये
ये जो चेंज हो गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, इसके अनुसार ही है। Basically, it is a judgment or decision taking part. हाँ, जहाँ पे वो डिसीजन लेता है कि या अपना ओपिनियन एक देता है, जज करता है, टेस्ट करता है। These are the examples: writing a letter to the editor, debate, and so on. इसको क्या है, ये तो एक सब्जेक्ट की हाँ हो गया है, ये क्रिएशन में आ गया, लास्ट में ये क्रिएशन में आ गया, creates new ideas. The learner creates new ideas and information using what has been previously learned. जो पहले लर्न किया है उसके हिसाब से वो क्रिएट जो डिजाइन कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, प्लानिंग कुछ कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस करेगा या कुछ इन्वेंट करेगा, कुछ नया डिवाइस करेगा, कुछ बनाएगा, वो है कि can you generate new products, idea or ways of doing things depending on your knowledge. तो वो सारा हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है क्रिएट करने का। और ये 2001 जो अपडेट वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया है क्रिएशन का। ये कॉग्निटिव पार्ट में ही सारा है। ये कुछ क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग हम अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न और वो किस कैटेगरी में फॉलो करता है, ये जस्ट एन एग्जांपल है कि रिमेंबरिंग में हम किस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट हैपेंड, हाउ मेनी, किस तरह से स्टार्ट होते हैं रिमेंबरिंग पार्ट में। जब अप्लाइंग में आते हैं तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाते हैं, डू यू नो, कैन यू ग्रुप बाय कैरेक्टरिस्टिक सच एज। तो ये क्वेश्चन फॉर्म जब हम करते हैं तो हमारा बिगनिंग जो है ये इस तरह से होना चाहिए। When we are into analyzing things, it starts with which event, if happened, what might, how is similar, how it is similar to. So इस तरह के questions हमारे फॉर्म होते हैं। चौधरी सर को जो है एक दे दीजिए नेक्स्ट डे के लिए कि एक क्लास लेंगे कोई एक टॉपिक पे और वो इसी बेसिस पर वो तैयार करेंगे। या इवैल्यूएटिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं, इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन, जस्ट द वैल्यू ऑफ। बहुत सारे इसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे जो हर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और एग्जांपल्स भी हैं। लगा था कि ऐसा से ज्यादा दिन देखेंगे मुझे भी ना लगेगा। दिस इज द लास्ट, जब हम प्री मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, कैन यू डिजाइन, कैन यू सी, if you had access to all resources, how would you deal with. So these are a few examples. This is creating Thank you so much for लास्ट सेशन सर 2 मिनट लास्ट है क्विज प्रोग्राम Question number 1. The taxonomy was named after the days who chaired the committee of educators that devised the taxonomy. Option में बता रहा हूँ। Loin Bloom, Benjamin Bloom, David Bloom, John Bloom. Benjamin Bloom. स्टैंडर्ड हम लोगों को क्लास में इसी तरह रखना है कि जो पूछना है बच्चों को। Next question sir. In 2001, the revised version of Bloom's taxonomy was provided by option: Lorin Anderson, David Cathol, Benjamin Bloom, या Lorin Anderson and David Cathol. ये सब कुछ नॉलेज बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाला नहीं है। Option D is correct answer. Option D, Lorin Anderson and David Cathol. ये पहले मैंने बता दिया था कैसे। Next question. The committee who developed the taxonomy identified how many domains of educational activity? 3 domains. Yes, correct answer, 3 domains. Next question. In which order the levels of the taxonomy
followed. Option मुझे इसमें ये पूछ रहे थे 3 डोमेन्स को ले कौन डोमेन वो बोल के नहीं सर इतना ही काफी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है in which order the levels of the taxonomy are followed. Option lower to higher, higher to lower, lower to medium, या higher to medium. Lower to higher. Thank you. Next question. नेक्स्ट ये जो हमारा